So as far as Nagpur is concerned, I couldn't find a better realtor than you, जिनको नागपुर के रियल एस्टेट के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए. सो मैंने कहा ऋषि जी के पास बहुत 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 भंडार भरा हुआ है. सो वी वांट टू ट्राई यू आउट टुडे. I'm thankful you are thinking that, and definitely whatever knowledge I have of the city and of our profession and industry, definitely I will try to inform this. थैंक यू ऋषि जी. ऋषि जी, आपकी जर्नी के बारे में बताइए. आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और रियल एस्टेट में कैसे पहुंचे? किशन जी, ऐसा है कि I started my career in 1991. Okay. So after the graduation, so I started with companies. I worked with around 20 companies 20 years for around 6 companies. Okay. So it was a durable industry, and I started with VIP Bloblast. Then it was so it was furniture division. Then it was BPL Limited. Then after that, it was pure electronic lines. Like BPL Limited, I was there for 5-6 years. Hitachi, I was there for 4 years. Then Tata Sky, I was half of Maharashtra head I worked there for 5 years. Hyundai Electronics, Philips Electronics. So these are some companies which have given me what I am today, I can say. I'm thankful to these companies because they have taught us a lot. I have a very memorable journey company. And almost like Central India, I've handled it totally. From Chhattisgarh to Vidarbha to Marathwada and all those. तो इन कंपनियों की वजह से आपको काफी कुछ आपको रीच मिला, मार्केट की समझ मिली कि मार्केट नागपुर का मार्केट या विदर्भ का मार्केट किस तरह चलता है. Yes, definitely, because that was a learning period and we started out. उस वक्त थोड़ा हम यंग भी थे, थोड़ा जोश भी था, तो हम लोग ने थोड़ा extensively we tried to learn a lot from these companies, and it was really a good time learning and giving back to those companies also. Very nice. आपकी जर्नी एज ए रियल्टर कैसे रही है? कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का? I'm in this industry from around 2012. 2011 I have almost around 13 years अभी touch होगा. So 2011 and the end I left the company. I was with Philips lastly, Philips Electrolux, and I thought कि अभी कुछ खुद का करना चाहिए. So I decided to do something. So my real sister, she is into, she's a legal advisor on a panel of 20 banks in La. Her name is Neelam Joss. Okay. So she motivated me that real estate is a good line and professionally good people are coming into this line. So why not you start your own something? So that's how it started. Ki I should do something. And the determination given by our parents, I thought this is the right time. There is no late or you're not 20 years, so you're late to come into an industry. So that determination helped me to start a new thing in 2012. So after 20 years, I started with zero. Very nice. So आपको 12-13 साल का अनुभव तो ऑलरेडी है रियल एस्टेट मार्केट में. So हमें नागपुर के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज नागपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट है और हम सुनते हैं कि नागपुर में रोड रास्ते काफ़ी बड़े हैं, क्लीन है और बड़ी डिसिप्लिन तरीके से ट्रैफिक चलती है. तो इसके बारे में कुछ बताइए कि और इसका रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट है? रियल एस्टेट पे जो इम्पैक्ट है इसका, इनफैक्ट व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द टाइम नागपुर इज हैविंग flyovers, Nagpur is having metro, Nagpur is having under bridges. So this is like 6 years it has happened. It started almost at the time of before, just a year or two before COVID, and till now it is under the development of that. It's happening, but many things are completed and many new things have also started in that. So what's happened? It has given the like a जिसको हम कहते थे नागपुर का एक ट्रेन थी कि नागपुर एक बड़ा शहर तो नहीं है लेकिन बड़ा गांव प्लस शहर, एक 10 साल पहले ऐसा बोला जाता था. तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो उससे हम प्योर केयर में आ गए बिकॉज ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स यू कैन से. सो the connecting of Nagpur from one side to easier become much easier. That is now because that is helping the
mobility of the businesses, the traders, you can say. Nagpur has a very well connected around 200 kilometers का radius आप देखेंगे 300 kilometers. अच्छा, So it is not a very big city. Like you can say on the east, Raipur is around 250 to 300 kilometers. हाँ जी, Hyderabad is around 450 kilometers. That 500 kilometers. This side Bhopal is around 350 plus kilometers. हाँ, So you don't have a very big city connected to Nagpur. So Nagpur catches many small townships for the business purpose on that track. ओके. सो इसमें It helped Nagpur to come into that trade and this जो शहर बन गया है उससे लोगों को लग रहा है कि अब कुछ यहाँ होगा. हाँ, और वैसे भी नागपुर तो विदर्भ का महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल माना जाता है और विदर्भ का सबसे बड़ी सिटी है. Yes, yes. We are whatever is and Nagpur is the main city. और आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, गडकरी जी नागपुर से ही है. Definitely, Gadkari ji is like you can say कि he has changed the scenario of the city. So we are thankful to Nitin Gadkari ji for doing a lot for the city and infrastructure developments के साथ साथ other activities like he is doing some programs which are generally a sports culture, other cultures, everything is doing. In fact, overall development is good from you can say Gadkari Saab or even from the Devendra Fadnavis Saab also has taken good impact into that. So these two stalwarts of the city is definitely shaping up the city in a very strong way. I think there is an article in we have read almost around 6 months back that Nagpur ranks around 10 top cities of Asia to the upcoming cities. आई सी. ओके. Yeah. ओह, आई एम श्योर अबाउट इट. ऋषि जी, मुझे ये बताइए कि नागपुर में व्हाट इज ट्रेंडिंग, क्या टाइप के प्रॉपर्टीज ज्यादा बिक रही है और कौन सी एरियाज हैं जहां ग्रोथ हो रही है माइक्रो मार्केट. So Nagpur trending, I talk of we have very number of verticals in our real estate. So if I first start with suppose residential, so residential, what is happening like premium in the main heart. If we categorize Nagpur into like ABC areas, so A is a premium area. So premium areas, what has happened? The size of the apartment has changed. People are now, there are a lot of percentage, many higher, becoming higher where they want to go for a higher, bigger size of a flat. Yes. So the COVID, I think that has helped them कि भैया नहीं, home is more important. Yeah. So the premium demand is picked up. So now पहले एक हमारे पास 2,500 to 3,000 square feet used to be a bigger flat around 8 years back, 7 or 8 years back. No, if the flat considers of around 6,500 square, now 3,000, acha, 1,000. So it's like that ideas change. So the important areas like we have West Nagpur, like we have Dharampet, we have Bajinagar areas, we have Ramdaspet area, these area, Lakshmi Nagar area, we have, these are in West. In North, we have Baramji town area, Rajnagar, Vijayanagar areas. In East, we have Vardhaman Nagar area. And in medical side, like South Nagpur, there is a Tata and Godrej township has come up that side. So these overall areas are the premium areas of Nagpur where one can think of going and staying or investing and keeping for the future. So east and west and north, आप ज़्यादा consider करते हैं, are better. No, West is the highest. West is the highest, meaning in terms of prices. Prices also, and people wanting to go also because that is a new Nagpur from last 50 years, 40 years. Okay. Yeah. Okay. So it's a newly developed area, you can say, in the last 40 years, 50 years, more of colleges, government offices, so school, so everything is slightly near to this, the West Nagpur. West Nagpur. और अभी जो areas develop हो रही है, those are east and north. No, अभी जो develop हो रही है, that is highest is south. South is developing. Which is जहाँ पे गोदरेज और टाटा ने पिछले कुछ साल पहले अपने टाउनशिप्स डाली है, उसके पीछे का एरिया ज्यादा डेवलप हो रहा है. That is a medical square, you can say. तो वहाँ पे एक मॉल भी आया था जो पहले VR मॉल के नाम से था, अभी operator has taken over that. Okay. This reminds me, I will just digress from this. This reminds me, वहाँ पर एक कोई लंदन स्ट्रीट भी आपके वहाँ हुआ था. Yeah, what was that? So our city has
developed that street. Actually, that is on the way to the airport, and that comes on the west side, almost west side of the city, near to the south, you can say, and it is on the developed area. Like Nagpur, the most developed area is towards the airport. अच्छा, ओके. एंड एयरपोर्ट से आगे में तो जो एयरपोर्ट के वे में ये पड़ता है, तो देयर यूज्ड टू बी अ रेलवे लाइन अर्लियर देयर, so that railway line was stopped because that doesn't was उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा था. And full area that stretch of around 7-8 kilometers, the government has developed into a full street where you can have residential and commercial activity. तो उसको लाइन स्ट्रीट करके डेवलप किया है, and it's on the part and process on that. So some 1 kilometer is developed, other is on the development part, but that is going to be a very nice way because they are planned it very back. So kudos to the corporation, Nagpur Municipal Corporation, and the governments which have been handling this for that. So there is a good commercial space coming up and good residential space coming in that. ओके, ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट अपकमिंग एरियाज, जो आपने कहा कि साउथ अब ज्यादा पिकअप हो रहा है गोदरेज और टाटा के कारण. तो क्या प्राइस बैंड चलती है इन लोकेशंस में फॉर अ गुड रेजिडेंशियल? What has happened? I'll just explain you a little bit on the south. Since the airport is almost on the mid of south and west, almost, and the south is developed because there's area called Mihar, which is being developed from last 15 years, 18 years. So currently, thoda karke around 70 to 80,000 people are now working in that area. और वो एरिया में जो आपका एम्स आ गया है अभी लास्ट 5 years में, IIM आ गया है, वहाँ पे IT कंपनीज आ गई है. You've got like work is there. So people are not, we are expecting another 5 years, it will be somewhere around 2 lakhs of people plus should be working there. So where will this 2 lakh people reside? So the पास का जो area south of Nagpur, that is like you can say affordable area. So it started with around 2,500 rupees per square feet for a flat. So now it is going up धीरे धीरे करके, but फिर areas पीछे भी जा रहे हैं. So that full area of around 6-7 kilometers has developed from the medical square, which is from the, we can say from the Godrej and Tata ने जो walls जो अपने residentials बनाए थे, sorry, Godrej and Tata जो बनाए थे, वहाँ से पीछे का एरिया पूरा डेवलप हो गया. And that is near the airport. तो क्या प्राइस बैंड अब चल रहा है? जो पहले 2,500 में बिकता था, अब क्या प्राइस है? आज वहाँ पे 4.5 का रेट हो गया है. ओके. और आज जो पीछे चले गया एकदम, दैट इज अ बेसा एरिया, दैट इज बेलतरोडी एरिया, दैट इज पिपला एरिया. वहाँ पे पिपला में अभी क्रोमा एंड स्टूडियो हैज ओपनड अप फॉर द मासेस, दोस थिंग. सो वहाँ पे अभी प्राइसिंग आ रहा है अराउंड 3,000 स्क्वायर फीट. वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है टाउनशिप के रिगार्ड. ओके. There are big townships of 10 acres, 8 acres, 7 acres, 12 acres are coming up with all types of amenities and all this. That is giving the Nagpur city the look, because Nagpur cities where amenities has been a new thing from last 7-8 years. It was not a very old thing. Like हम दिल्ली, बॉम्बे ये सब की बात करें, पूना या हैदराबाद, तो वहाँ amenities शायद 10-12 साल पहले से 15 साल पहले से आ चुकी थी. ज्यादा. But Nagpur में amenities culture started around 7-8 years. ओके. So वो अब लोग उसको enjoy कर रहे हैं. So yes, because seeing that affordability, because वो affordability उसको लग रहा है कि बॉस मुझे 40 लाख में भी फ्लैट मिल रहा है, मुझे 60 लाख में भी फ्लैट मिल रहा है, मुझे 80 लाख में भी मिल रहा है. तो उसको लगता है कि इसके साथ मुझे तो amenities मिल गई, तो मेरा जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है, मेरे को मेरे फैमिली को एंजॉय करने को मिल रहा है. तो ही इज सीइंग दैट वैल्यू फॉर मनी इन दिस एरिया. वेरी गुड. या सो व्हाट अबाउट द कमर्शियल, ऋषि जी? कमर्शियल या रिटेल जो है, जैसे शॉपिंग वगैरह के लिए, वो कौन सा एरिया ज्यादा बेटर है उसके लिए, और क्या प्राइस बैंड चलता है उसका? We had 4 fixed areas earlier from last 56 years in Nagpur. That is, west is a Dharampet market, we said. The word we use is Dharampet market. So Dharampet market considers around 3-4 kilometers में जो भी आसपास से सब आ जाता. Then we have a southern area which is of north of Nagpur. That is little bit of a mix of old and new area, north of Nagpur, southern market. Then we have a very old market where railway station का backside आता है वो, which is east is eastern पे जिसको हम जिसका हम कहते हैं पुरानी सिटी, जो जहाँ पूरा बिजनेस होलसेल का everything including लोहा, grains,
एवरीथिंग, मतलब आप हर चीज का मार्केट और लीजिए तो वो मार्केट है. Okay. That is called Gandhiwad and Itwani market. And the fourth area is the Sitapati market, which is towards little bit towards the south. So this 4 areas में developments काफी अच्छा था, but over this 7-8 years things have changed because of the infrastructure development which has taken place. जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारे मेट्रो बने हैं अभी 5 साल में, इसके पहले हमारे फ्लाईओवर्स बने थे, और फिर स्मार्ट सिटी नागपुर को डिक्लेयर किया गया था. तो उसके कारण जो रोड्स डेवलप हुए, जो वाइडनिंग ऑफ रोड्स हुए, so they will help Nagpur to get it into the corners of the outskirts of the city also. हाँ. अभी जो अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द लास्ट 2 years पहले जो नया जो ये आया था, DCR आया था, जिससे डेवलपमेंट्स कैन बी बेटर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके कारण क्या हुआ कि कमर्शियल का डेवलपमेंट सिटी के मेन स्पॉट्स पे हुआ है. लाइक ऑन द ईस्ट साइड वर्धमान नगर सेंट्रल एवेन्यू पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं. हम अगर वर्धा रोड साइड देखें तो बहुत सारे कमर्शियल डेवलपमेंट्स हुए हैं. तो पीपल आर इन द मनीष नगर जो रेसिडेंशियल था, वहाँ पे आपका डी मार्ट आ गया है, वहाँ पे आपका जूडियो आ गया है, क्रोमा आ गया है. तो ये सब डेवलपमेंट्स जो है लोकल हमारे हल्दीराम ब्रांड्स है वो आ गए हैं, हाँ. PVR आ गया. तो ये सारी चीजों के कारण इट इज हेल्पिंग इन दैट. सो द यू कैन से सब मार्केट्स हैव डेवलप्ड इन दिस, जिसमें हम ये जो कमर्शियल मार्केट्स है, अब ये मार्केट्स इंपॉर्टेंट प्रताप नगर, लक्ष्मी नगर, दीज आर, यहाँ पे आपको बड़े कमर्शियल ब्रांड्स दिख रहे हैं. सदर एरिया, बैरामजी टाउन एरिया में आपको बड़े ब्रांड्स आ गए हैं इस टाइप. सो द सब मार्केट्स आर आल्सो डेवलप्ड बिकॉज ऑफ, सो इट तो ये डजंट हैव टू ट्रैवल. जैसे आपके सिटी में आपके पास मेट्रो तो ऑलरेडी है, पुणे में तो अभी शुरू होगी, इतने बड़े पुणे है हमारी, बट मेट्रो अभी शुरू हुई है. बट वी हैव वेलकम डेट, बहुत जबरदस्त हिट हुई है. आपके पास ऑलरेडी मेट्रो है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको दिक्कत नहीं है. आपके रोड रास्ते भी बड़े अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट भी अच्छी है आपकी. सो आपको ये तो बड़ा एडवांटेज होगा इस चीज का कि अगर साउथ में लीजिए या ईस्ट में लीजिए या वेस्ट में लीजिए, ट्रैवल इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू. But you are absolutely right, because what has happened कि जो हमारा मेट्रो का भी जो प्लानिंग हुआ है, that is a center 80 इंटर एक्सचेंज है नागपुर का मेट्रो का, that is सीतापटी एरिया. So if you are traveling from east or south or north or west, you can easily come there. और वहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सचेंज अगर करेंगे तो you can go to any city. So recently one of my known people, he told me, he is a करोड़पति, he told me कि ऋषि मैं वर्धमान नगर से मुझे जाना था एयरपोर्ट तरफ, तो बोले मैंने अपनी कार रख दी स्टेशन के पास में और मैंने मेट्रो किया, एंड आई डायरेक्टली वेंट टू द एयरपोर्ट के पास में जहाँ मुझे काम था, क्योंकि एयरपोर्ट के पोस्ट स्टेशन के पास में ही था. तो मैं वहाँ पर काम निपटाया और 2 घंटे में मैं वापस आ गया. और मेरे को बोले जो थोड़ा सा जो कभी कभी ट्रैफिक पीक आवर्स में मिलता है वो मुझे नहीं मिला, ऐसे हो गया. तो मेट्रो इज ऑल्सो हेल्पिंग, द फ्लाईओवर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग. तो पीपल इफ दे वांट टू इन्वेस्ट, दे आर डिसाइडिंग की which is affordable for us and more valuable for them. They are deciding that वेरी नाइस. या ऋषि जी, जैसे नागपुर इज एन ओल्ड सिटी, काफी रिच हेरिटेज और कल्चर है नागपुर का, हिस्ट्री है, और एक खिताब है नागपुर का नाम, दैट इज नागपुर इज द सेंटर ऑफ द कंट्री इंडिया के मैप पे. और मैंने देखा है, आप हमें ले चले थे, वहाँ 0 माइल भी है नागपुर में, जो सेंटर ऑफ द कंट्री है. तो नागपुर इज वेरी फेमस फॉर मेनी थिंग्स, ऑरेंजेस हैं. ये बताइए कि नागपुर में जैसे IT या ऑटोमोबाइल या और जॉब क्रिएशन वाले कोई और इंडस्ट्रीज भी आई हैं? ठीक है सर. वेल, इसमें एक चीज थोड़ा सा पहले आपको, जैसे आपने नागपुर का कहा और 0 माइल का, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा. नागपुर इज, जैसा हम कहते हैं कि नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले से है. एंड देयर आर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच मेनी पीपल डजंट नो. वन इज फॉर द रेगुलर ऑपरेशन, अदर्स इट इज हैविंग, मतलब जो भी उनके दूसरे सीक्रेट्स वो रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द थिंग दैट इज देयर इन दैट जो चीज, एंड इट इज. इसके अलावा नागपुर इज अर्लियर इट वाज अ कैपिटल ऑफ CPN बेरार सेंट्रल प्रोविंसेस, व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ, यहाँ से भोपाल इंदौर तक पूरा नागपुर था. तो नागपुर को जो सेकंड कैपिटल का खिताब मिला वो इसलिए मिला कि नागपुर को जब महाराष्ट्र से जोड़ा गया तो सबका डिमांड था कि नागपुर को आप सेकंड कैपिटल बनाइए पुणे के बदले में. तो वो रिक्वेस्ट मानी गई थी, इसलिए नागपुर इज द सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. एंड वी हैव अ वेरी गुड
गवर्नमेंट ऑफिसेज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर वेरी हाई उस Okay. तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेज स्टेट गवर्नमेंट तो है बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर आल्सो वेरी हाई Okay. एंड लाइक कॉटन अगर आप देखेंगे आप ये देखेंगे ऑरेंजेस आप देखेंगे तो दीज आर टू मेजर पॉइंट्स ऑफ नागपुर फॉर द दिस एग्रीकल्चर बेसिकली तो स्ट्रांग है ही है बट ये 2 पॉइंट्स है और जो नागपुर के पास में एक एरिया है चंद्रपुर एरिया वहां पे सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत है Oh. सो दैट इज अ गढ़ फॉर सीमेंट फैक्ट्री तो वहां पे अभी पावर प्लांट्स बहुत आ रहे हैं एंड नागपुर सिटी एंड आसपास में पावर प्लांट्स के कारण नागपुर सप्लाईज पावर टू बॉम्बे ऑल्सो Oh. So अच्छा. this is like people doesn't know. So Nagpur हाँ. is very rich. जैसे हम एक टाइम पे झारखंड का कहते हैं कि it is very rich in many things. So Nagpur is very rich, and I think now it is coming the due time वहाँ लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे उनको उतने रिटर्न्स क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ नागपुर वो स्टेज पे जो आज से 20 साल पहले पुणे था 18 साल पहले जी. जो एक एक्सपेंशन का एक्सप्लोड होने वाला था तो आज हम वो स्टेज पे जहाँ हमारा एक्सपेंशन एक्सप्लोड होने वाला है हाँ. उस तरीके से तो एवरीबॉडी who's thinking to reside in Nagpur, grow businesses in Nagpur, do investments in Nagpur, I think this is a very correct and right time to do that because maybe after 5-7 years वो डेवलपमेंट के कारण रेट्स भी चेंज हो जाएंगे जरूर और मैंने ये सुना है कि कुछ आईटी कंपनीज भी वहाँ सेटअप की जा रही हैं अब yes there are around 5-6 companies in the Mihan which has come including TCS, Infosys ये सारी कंपनीज है HCL ये कंपनीज है तो इन सब के जो डे बाय डे जो ये है एम्प्लॉइज है दे आर इंक्रीजिंग Mihan has a capacity of 5 lakhs plus workers employees there currently it is at around 70-75,000 okay so we are expecting in next 3 years it will cross 2 lakhs so ये सब लोगों को जो जॉब मिल रहा है नया जो है ये जॉब रहने के कारण जो आउटस्कर्ट्स का एरिया साउथ ऑफ नागपुर और वेस्ट ऑफ नागपुर में ये जल्दी जा रहा है जैसे मैंने आपसे बेसा बेलतरोड़ी की बात कही मनीष नगर की बात कही इधर दूसरे साइड में हिंगना है अभी एक नया डेवलपमेंट है सर बहुत अच्छा दैट इज द समृद्धि सर्कल दिस इज द समृद्धि एक्सप्रेसवे व्हिच हैज कम फ्रॉम बॉम्बे टू नागपुर करेक्ट सो दैट इज ऑलमोस्ट मिहान से थोड़ा आगे जाके 5 किलोमीटर आगे जाके ओके तो वो इट इज बिकमिंग अ वेरी वेरी हॉटस्पॉट अगेन विद मिहान एज अ ड्राइवर विद दैट इज आल्सो बिकमिंग अ ग्रोथ ड्राइवर बिकॉज वो जितने लोग ट्रैवल करते हैं महाराष्ट्र के जितने भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टिल टू द बॉम्बे देयर आर अराउंड 10 डिस्ट्रिक्ट्स 11 डिस्ट्रिक्ट्स ये सब क्रॉस करके जाएगा तो ये पब्लिक पूरी ट्रैवल कर रही है वहां से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है तो समृद्धि एक्सप्रेस ऑलरेडी चर्चा में है और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं लोग इसको यूज कर रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी डूइंग दिस सो अभी इसमें क्या हुआ है कि वहां पे कैंसर इंस्टीट्यूट आया है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट उसी के पास में वो मिहान के पास में ही और मिहान के पास से ये समृद्धि सर्कल है जो चीज है तो वो एरिया बहुत ज्यादा डेवलप होते जा रहा है साथ साथ उसमें अभी क्या किया द ब्रांड्स लाइक कल्पात्रु ब्रांड्स लाइक गोदरेज ब्रांड लाइक लोधा दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद अ प्लॉटेड डेवलपमेंट जो वो नागपुर में इट्स अ न्यू थिंग सो पीपल आर इन्वेस्टिंग बिकॉज आफ्टर 6-7 years दैट विल बी द न्यू नागपुर तो लोगों को वहां रहने मिलेगा क्योंकि यू कैन इजिली ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू नागपुर एंड यू कैन रिसाइड देयर यस सो दिस इज कमिंग अप और वहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है विद दिस न्यू डेवलपमेंट या सो ऋषि जी माय क्वेश्चन टू यू इज गवर्नमेंट के पॉलिसीज बहुत सारी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में जैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके साथ साथ रेरा भी आ गया सो आपको क्या लगता है कि नागपुर रियल एस्टेट मार्केट में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा सर जो रेरा का जो इम्पैक्ट है रियल एस्टेट का जो एक्ट है उसमें आई वुड लाइक टू से कि इट इज अ वेरी फैंटास्टिक वर्क डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके ऑन ब्रिंगिंग इन रेरा बिकॉज ये हमारा जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसको उसने बहुत चैनलाइज किया है बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई है एंड देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स इन दैट अगर डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स बोलूंगा वन इज द कंज्यूमर which is the most important and the provider that is property provider that is the builders and third the realtors jo we are the connectors between the two people on that front so ye RERA act ne तीनों को कवर करते हुए एक ट्रांसपेरेंसी लाया एक भरोसा लाया so that is help people to decide on the properties faster and there are disputes less there are issues less there's a transparency working between the
developer and the realtor also. There's a transparency between the realtor and a customer also. तो Yeah, ये इसके कारण it has helped overall customer का confidence बढ़ गया है next. बढ़ गया. So thanks to the Maharera and thanks to the central government. Yeah, and महाराष्ट्र हमारा स्टेट हमेशा आगे होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए और सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करने के लिए. सो विच महाराष्ट्र डेफिनेटली. और इसमें मैं बोलूंगा कि हमारे एनएआर इंडिया का भी रोल बहुत रहा है. जो हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया है, उसने जो खुद रेरा में जो रियल्टर्स को भी जो एजेंट का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, वो गाइडेंस प्रोवाइड किया. तो वी आर इवन डूइंग फ्रॉम पार्ट ऑफ NAR India in Nagpur, we are training people who are the consultants, brokers. So they are feeling happy about it. We are connected to NAR India. We are getting trained. We are getting going for the exam, and finally we are getting the certificate. So NAR India, kudos to NAR India for that. Definitely. Yes, आपने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एसोसिएशन में और रियल्टी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में विदर्भ में. आप विदर्भ रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. अब आप चेयरमैन की भूमिका अदा कर रहे हैं वहां पर. तो इसके बारे में कुछ बताइए. विदर्भ एसोसिएशन क्या करती है, रियल्टर एसोसिएशन? So ये विदर्भ एसोसिएशन रियल्टर्स वाज फॉर्म्ड इन अराउंड 2010-11 के आसपास में, and we started with a slow journey, and in 2012 when I came into this line, I was attached to a company from Bombay that is Square Feet. I was a part of Square Feet for with them. So उनके साथ मुझे जो हाँ जी विनोद ठक्कर जी की जो कंपनी है, बिल्कुल बिल्कुल विनोद ठक्कर जी की जो कंपनी है, एंड विनोद ठक्कर जी यू कैन से इज माय फर्स्ट गुरु इन दिस लाइन फॉर रियल एस्टेट. उनसे और उनके टीम से मैंने बहुत कुछ सीखा है इस चीज में. एंड उस समय पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम साथ साथ जो है ना रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी में अपने जो कंसल्टेंट ब्रोकर्स फैसिलिटी है रियल्टर्स, उनको आप थोड़ा एकत्रित करो और थोड़ा इसको एक अच्छा करो. In 2015, I got opportunity to attend the governing body meeting of the NAR India at Bangalore. At that time, Mr. Vijay Sarthi took up as the president of NAR India. And in that, वहाँ से मेरा जर्नी चालू. I came back and I started telling people, जो मैं जिनको मिलता था जानता था, कुछ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 5-7 लोग थे हम लोग. बोले यार लेट्स कम टुगेदर एंड इसको रिवाइव करते हैं, हमारा जो उसको बड़ा करते हैं हमारे एसोसिएशन. एंड वी रिवाइव्ड आवर सेक्रेटरी. And it started. So every year we started doing programs. जो हमने NAR इंडिया में सीखते हैं कि भैया नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. और वो एक एक साल करके बढ़ता गया. पहले साल 60 people attended the program. Second year 100. Third में 150. ऐसा करके it grew. And last year we did, it was around 400 plus. And then these are people who come and pay and attend our program. Which is a full day program. It is an educational program. There's motivational programs, how to deal with the customer, how to deal with the projects, how to go digitally आगे. तो ये सब करके we have tried to bring educate. See, one idea is we can little bit give it back to the society. हम अलग से charity करने नहीं जा पाते हैं. So it's like giving back to the own fraternity. कहीं तो हम सेवा करें सर अपने, चाहे देश की बोलो हमारे कम्युनिटी की बोलो, तो हम किसी रास्ते को हमने थोड़ा सा अपना वो पॉइंट बना लिया है. तो अभी आपके कितने मेंबर्स हैं? We have 50 members right now. Very good. But we are on the expansion thing, but we are going on a slow because we are working on quality people. All जितने भी हमारे लोग हैं ये सब digital use करते हैं. They are professional people. They have teams. They have offices. So we are trying to develop more. We can expand to even double triple immediately कर सकते. But we don't want that because we want to train those people कि उनको market में एक respect मिले, उनका एक image proper रहे. People would want to do re-business with them. So that is our motto for Vidarbha Realtors Association to do that. And the Credai, which is the local Credai Nagpur, they are very happy about it, the way we have gone in. So they welcome us for the meetings. We discuss certain times कि हमने किस तरीके से करना चाहिए. They come to us for presentations. We go to the sites as a unit and we try to get that information provided to the customers what these builders are good with Credai, and they also follow some good norms and everything. So you deal with these developers. So it's a mutual coordination which we are using it for our association, and we are a very happy unit of around 50 people. We do charity programs, we go for picnics also, we exchange information, we do business. So it's that our team is really a good team. Currently
our president, Mr. Dashpreet Singh Nara, like I'm heading as a chairman, and now he's the president. I was president for around 7 years plus. So it's like moving on with the experience. I'm mentoring other people. So I'm in that role now. अमेजिंग। ऋषि जी, आप गवर्निंग बॉडी पे भी रह चुके हैं एनएआर इंडिया की, और हाँ जी। आपको वहाँ भी काम करने का अनुभव है, तो हाँ जी। आपको कैसे लग रहा है कि हाउ डू यू फोरसी कि एनएआर इंडिया की गवर्निंग बॉडी पे रह के आपको क्या किस चीज का फायदा हुआ है, और वो आपने कैसे अपने एसोसिएशन में अपने लाइफ में उसको यूज किया है अपने क्लाइंट्स के साथ? सर, सबसे पहले मैं एनएआर इंडिया का भी और मेरे विदर्भ ऑडिटर एसोसिएशन दोनों का आई वुड लाइक टू थैंक both the associations for that, because of joining these associations I've been able to get more knowledge, get more connected to people. तो पहले लोकल एसोसिएशन से हुआ, साथ साथ फिर जब एनएआर के हम लोग जब जीबी मीटिंग्स में जाना चालू किया, कॉन्फ्रेंसेस में जाना चालू किया, उससे हुआ एनएआर इंडिया का जो नेशनल लेवल पे जो काम होता है वो हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं, बट जो हम जीबी मीटिंग अटेंड करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी मीटिंग, वहां पे जो एक्टिविटीज होती है, तो मैं आई वुड टेक वन मोर नेम, मिस्टर रवि वर्मा जी. ही हैज बीन अ वेरी, मतलब ही हैज बीन मोटिवेटिंग मी, ही हैज बीन गाइडिंग मी टाइम टू टाइम. आई हैव बीन आस्किंग हिम कि सर ऐसा हम ऐसा करें क्या, वैसा करें क्या. सो विद हिज वास्ट एक्सपीरियंस ही हैज ऑलवेज गाइडेड अस. सो आई एम थैंकफुल टू रवि वर्मा जी फॉर दैट गाइडेंस व्हिच ही हैज बीन गिवन. अब जो हम लोग जो करेंटली जो हम लोग एनएआर इंडिया में जीबी मीटिंग में जाते हैं, तो वहां पे हमारे एक्सपेंशन प्रोग्राम्स होते थे कि आपने कैसे मेंबर्स बढ़ाना चाहिए. फिर वहां पे इवेंट्स बताए जाते हैं कि इवेंट्स दूसरी जगह ने कहा कि हैदराबाद ने कुछ किया, दिल्ली ने कुछ किया. तो वी लर्न फ्रॉम अदर पीपल कि व्हाट दे आर इम्प्लीमेंटिंग, चाहे वो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हो, चाहे वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, चाहे वो चैरिटी प्रोग्राम्स हो, चाहे एक्सपेंशन प्रोग्राम्स हो, चाहे अपने आप को हाउ टू प्लेस योरसेल्फ एज अ रियलिटर सो दैट योर ट्रस्ट लेवल इंक्रीजेस. तो ये चीज है. इसके साथ एक वन इम्पोर्टेंट थिंग थी कि इंटरसिटी बिजनेस. तो इंटरसिटी बिजनेस से एनएआर इंडिया ने बहुत हेल्प किया है. इंटरसिटी बिजनेस, इंटरसिटी वी आर डूइंग बिजनेस विद वेरियस सिटीज नाउ, एंड ये सारी चीजें आई हैव इम्प्लीमेंटेड विद द सिटी एसोसिएशन. हमने आके उनको बताया कि ये हम समझ के आए हैं और इसको एक एक करके इम्प्लीमेंट किया. सो वी हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग द एनएआर इंडिया प्रोग्राम्स इन आवर लोकल एसोसिएशन, एंड वी विल बी फर्दर डूइंग इट for the benefit of the local association. वेरी नाइस, वेरी वेरी राइटली पुट. आपने जैसे बताया कि नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नॉलेज शेयरिंग होता है, एजुकेशन होता है, सो रियल्टर अपना नॉलेज अपग्रेड करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो भी गोल है दैट शुड बी और एंड इज टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये सब सीखने के बाद अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए तो ही ये सारा चीज सार्थक है, जितनी भी हम लोग एफर्ट ले रहे हैं. अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो देन देयर इज नो पॉइंट हम इतना सब करने के वजह से. You are absolutely right, because after all, for us as a realtor, customer is the first point, because he is the person who is giving us business. Correct. And as rightly said, customer is God, customer is king. So these are help. That is one of the reason, including the expansion of our association. We are going slightly slow because we want to train people, we want to guide people, we want to make them more. Because if a VRA member is having all his knowledge and the transparency in his dealings, so that is helping his customers, and directly that is helping the VRA also. कि भैया ये VRA का member है तो आप आंख बंद करके इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं. वो कब होगा? जब वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा. तो यू राइटली सेड कि कस्टमर इज गॉड, and we have to benefit the customer with this our approach. Definitely. Absolutely, absolutely. ऋषि जी, आपके क्या फोरकास्ट है नागपुर रियल एस्टेट के लिए? आपको क्या लगता है कि नागपुर की रियल एस्टेट आगे अगले 5-10 साल में हाउ डू यू फोरसी इट? सर, लाइक एवरी इंडस्ट्री वांट्स कि एक समय आए जहां पे हमको कुछ जबरदस्त करने का मौका मिले. ठीक है. अब वो समय नागपुर के लिए आ रहा है. मतलब हमने कभी कभार ऐसा सुना है कुछ साल पहले, यार बॉम्बे 5 साल पहले बहुत अच्छा था, पूना अच्छा था. अब हम बोलते थे हमारी बारी कब आएगी. तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी बारी आए. अब हमको मौका मिल रहा है जहां पे हम सिटी के डेवलपमेंट्स देख सके, करा सके, और जो यूजर्स है उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, और जो इन्वेस्टर्स है उनको कर सके,
या जो बाहर की पब्लिक है जो नागपुर को देखती है एज एस्पिरेशन, मे बी नियर बाय में भंडारा है, गोंदिया है, वर्धा है, चंद्रपुर है, अकोला है, अमरावती, ये सब जो सिटीज, आपको छिंदवाड़ा है, ये सिटीज जो देखती है नागपुर की तरफ की, भैया यहाँ जाए तो हमारा कुछ भला होगा क्या। सो आई थिंक ये समय है भला होने का। तो ये पर्टिकुलर चीज भला होने के लिए आपको यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। अभी आपको यहाँ बिजनेस चालू करना है, बिजनेस के लिए आ सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, कर सकते हैं, बिकॉज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज आ रही है, अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज आ रही है। रेसिडेंशियल अफोर्डेबल में आप जैसे मैं आपसे कह रहा था, 35 लाख और 40 लाख में एमिनिटीज के साथ की प्रॉपर्टीज है, विच इज हार्डली 20 मिनट्स ट्रैवल फ्रॉम द सिटी। तो आप बताइए मुझे, आप मेट्रो में बैठेंगे 20 मिनट में आप आ जाएंगे और आप सिर्फ 40 लाख रुपए के फ्लैट में रह रहे हैं, और वो उसमें ऐसी एमिनिटीज है जो एक 5 स्टार होटल में होती है। माइंड ब्लोइंग, दैट इज ये सभी का ड्रीम है कि ये ट्रैवल टाइम बहुत कम हो, क्योंकि देखा ही जाता है जैसे शहर बढ़ता है ट्रैवल टाइम ही वक्त ट्रैवल में ज्यादा लग जाता है। सो ऋषि जी, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और मैं समझता हूँ जो भी इसको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी हैं या नए व्यूअर्स भी जो जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगा। आप के पार्टिंग थॉट्स क्या हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो नागपुर में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आके रहना चाहते हैं उसके लिए? जो नागपुर में आके रहना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा ये कहना है कि आप इन्वेस्टर्स शुड लुक इनटू कि व्हाट इज देयर एम फाइनली, एंड इफ दैट एम जो नागपुर जो प्रोवाइड कर सकता है, तो दे हैव टू सी कि जो हमको बिजनेस चालू करना है या हमको जॉब करना है। अभी जैसे आईटी सेक्टर्स आ रहे हैं, ट्रेडिंग आ रहे हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे ऑफिसेज है, जो आप एग्जाम्स दोगे तो गवर्नमेंट में आप नागपुर में आपको जॉब है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। आज नागपुर में एग्रीकल्चर काफी ज्यादा है। अभी धीरे धीरे नागपुर में जो सीमेंट फैक्ट्रीज जो चंद्रपुर साइड है उसके ऑफिसेज यूनिट्स है, यहाँ पे भी जो पावर प्लांट्स वहां आ रहे हैं उसके ऑफिसेज नागपुर में है। अभी गडचिरोली एरिया को इट इज बीइंग सेड कि इट विल बी स्टील सिटी ऑफ इंडिया। Gadchiroli, yes. So it is more than 50,000, 60,000 crores of investments is coming into Gadchiroli, which is next to Chandrapur, which जो is hardly 2.5. नक्सलाइट का एरिया माना जाता था, डरते थे लोग वहां जाने के लिए। वो सर नक्सलाइजेशन मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा, मतलब एक हार्डली एक छोटा सा पार्ट होगा, बट गडचिरोली का भी 3/4 पार्ट ये चीजों से भी अफेक्टेड नहीं रहा। जो चीजें तो वहां पे ये जो यूनिट्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है, उसके कारण उसके यूनिट उसके इफेक्ट्स नागपुर में भी आएंगे, चंद्रपुर में भी आएंगे, गडचिरोली में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका जो बेनिफिट्स होगा, ये नागपुर विल बी द कोर सेंटर फॉर दिस, इन चीजों को लेके। तो ये चीजों के लिए पीपल हैव टू हैव बेस्ड, उनका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा कि नागपुर में क्या हो सकता है। एंड इफ दे वांट, दे कैन कम टू अस, दे कैन टॉक टू आवर वीआरए मेंबर्स, दे कैन टॉक टू पीपल आउटसाइड इन द अदर, हमारे भले मेंबर्स नहीं लेकिन हमारे रियलिटी के जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स है, नागपुर के रियलिटर्स ब्रोकर्स जो है, उनसे बात करें। दे कैन आल्सो गाइड देम कि ये जो चीज है, सो इट विल हेल्प देम। द नॉलेज अगर आ गया तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उनका एंटर करना भी बेटर रहेगा, बिकॉज उनको यहाँ जॉब भी मिलेगा, उनको रेसिडेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। नागपुर इज द बीच का पार्ट है, तो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है एक जैसा, आपको बैंगलोर जाना है एक जैसा, बॉम्बे जाना है, तो नागपुर बीच में होने के कारण आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। तो दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट पीपल उस तरीके से आप देखें। वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसका फायदा उठाएंगे। और हम ऋषि जी का डिस्क्रिप्शन में कनेक्शन लिंक्डइन के प्रोफाइल डालेंगे, अगर कोई उनसे कनेक्ट करना चाहता है नागपुर के लिए तो यू कैन डू दैट। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड आप ये जो कर रहे हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप सबको अपडेट दे रहे हैं कि कहाँ अलग अलग शहरों में क्या हो रहा है। तो आई थिंक योर कुडोस टू योर वर्क्स। थैंक यू वेरी मच।